دوستوں ضیاء فلمز میں آپ کا ویلکم۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے آج کی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ دھماکہ اتنا ہی خوفناک تھا کہ سارے جزیرے کی زمین کانپ اٹھی تھی۔ یوں معلوم ہوا تھا جیسے سینکڑوں توپیں بیک وقت داغ دی گئی ہوں یا کوئی طاقتور بم پھٹ گیا ہو۔ وہ دھماکہ جزیرے کے وسطی حصے میں ہوا تھا۔ کئی چٹانیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضا میں اچھل گئی تھی۔ بہت سے درختوں اور جھاڑیوں میں آگ لگ گئی تھی۔ صفایا ہو گیا۔ پرمود ہاتھ ملتا ہوا بڑبڑایا، فیکٹری کو اڑا دیا گیا، اب وہاں کچھ بھی نہیں مل سکے گا۔ اعجاز کھڑا ہو گیا، اس کی ٹانگیں کپکپا رہی تھی اور کانوں میں شائیں ہو رہی تھی۔ شاید وہ پرمود کی آواز بھی نہ سن سکا ہو۔ پرمود کے کان بھی سنسنا رہے تھے، لیکن وہ خوفناک دھماکہ اس کے اعصاب پر اس حد تک اثر انداز نہیں ہوا کہ اس کی ٹانگیں کپکپانے لگیں۔ اب ہمیں ان سپاہیوں کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اور ان کے ہاتھ پیر باندھ کر اس جھاڑی میں ڈالنا ہے، پرمود نے کہا، تاکہ یہ ہوش میں آنے کے بعد اپنے آفیسر کو اس صورتحال سے آگاہ نہ کر سکیں۔ اگر ان لوگوں کو علم ہو گیا کہ ہم نے وردیاں حاصل کر لی ہیں تو پھر اس جزیرے سے نکلنا ممکن نہیں رہے گا۔ طلوع ماہتاب کے ساتھ ہی تاریکی کا غلاف چاک ہوتا چلا گیا۔ جزیرے پر اب اس اعتبار سے مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا، اور کوئی گولی نہیں چل رہی تھی اور کوئی دھماکہ نہیں ہو رہا تھا۔ صرف فوجیوں کی نقل و حرکت اور ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ چند افراد گرفتار بھی ہوئے تھے، لیکن بیشتر مارے جا چکے تھے۔ ان کی لاشیں ایک جگہ جمع کی جا رہی تھیں۔ اس خونریز مارکے میں کافی فوجی بھی کام آئے تھے، مگر تناسب بہت کم تھا۔ سن گراٹ سے مزید فوج طلب کر لی گئی تھی۔ اس خوفناک دھماکے کے مرکز کے گرد ایک حصار قائم کر دیا گیا تھا، اور فی الحال کسی فوجی کو بھی اس حصار میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ 2:30 بجے کے قریب 2 ہیلی کاپٹر جزیرے پر پہنچے۔ ان ہیلی کاپٹروں میں ماہرین کی جماعت آئی تھی۔ ان لوگوں کو اس دھماکے کے اسباب کی تحقیقات کرنا تھا۔ سیکرٹ سروس اور انٹیلیجنس کے چیف آفیسرز بھی ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پہنچ گئے۔ زمین سے 20-25 فٹ اوپر ایک مستع چٹان تھی جہاں ان ہیلی کاپٹروں نے لینڈ کیا تھا۔ اس چٹان کا نصف حصہ نہایت کٹا پھٹا تھا اور اس میں دراڑیں بھی تھیں، جن کے باعث کوئی ہیلی کاپٹر اس پر لینڈ نہیں کر سکتا تھا۔ میجر پرمود اور اعجاز کسی نہ کسی طرح اس بلندی پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور وہاں سے جھانک کر 20-25 فٹ نیچے کھڑے ہوئے ہیلی کاپٹروں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چاندنی میں ہر شے صاف نظر آ رہی تھی۔ چٹان کے اس مستع حصے میں 10-12 فوجیوں کی نقل و حرکت دیکھی جا سکتی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ سب فوجی ہیلی کاپٹروں کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے تھے۔ ان ہیلی کاپٹروں ہی کو دیکھ کر پرمود اور اعجاز نے یہاں تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، اور پرمود سوچ رہا تھا کہ اگر کسی ہیلی کاپٹر پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے تو وہ اس جزیرے سے بآسانی فرار ہو جائیں گے۔ کرائن سے پتہ چلتا تھا کہ جزیرے سے فوج کی واپسی کا فی الحال کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اس لیے پرمود کی پہلی اسکیم شرمندہ تکمیل نہیں ہو سکتی تھی۔ از کم اس وقت تک نہیں ہو سکتی تھی تک فوج کی واپسی کا آغاز نہ ہوتا۔ لیکن پرمود اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس جزیرے پر کئی دن گزارنے کے بعد اب اسے اکتاہٹ محسوس ہونے لگی تھی اور وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اب سوچنا صرف یہ تھا کہ ہیلی کاپٹر پر قبضہ کس طرح کیا جا سکے گا، جبکہ ان کی حفاظت کا معقول انتظام تھا۔ تمام محافظ سپاہی ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، اس لیے اچانک فائرنگ بھی ان سب کو ہلاک نہیں کر سکتی تھی۔ ان میں سے 2-1 کو بچنے اور پوزیشن لینے کی مہلت مل ہی جاتی، اور پھر ناممکن تھا کہ پرمود اور اعجاز کسی ہیلی کاپٹر کے قریب پھٹک بھی سکتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرمود کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ کوئی معقول تدبیر ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ اچانک فضا میں ایک کرخت آواز گونجنے لگی۔ ایک اور ہیلی کاپٹر اس طرف آ رہا تھا۔ پرمود اور اعجاز جلدی سے ایک دراڑ میں سمٹ گئے تاکہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کی نظریں ان پر نہ پڑ سکیں۔ چٹان سے سرچ لائٹ فضا میں پھینک کر اس ہیلی کاپٹر کی رہنمائی کی گئی۔ چند ہی منٹ بعد وہ ہیلی کاپٹر بھی چٹان پر اتر چکا تھا۔ وہ چٹان اتنی بڑی تھی کہ ابھی مزید 8 ہیلی کاپٹر وہاں اتر سکتے تھے۔ پرمود اور اعجاز نے جھانک کر دیکھا، اس چوتھے ہیلی کاپٹر سے کئی آدمی اترے تھے، اور ان میں سے ایک کو پرمود نے پہچان لیا تھا۔ وہ مون لینڈ کی ایک اہم شخصیت تھی، وزارت داخلہ کا سیکریٹری۔ اچانک پرمود کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور اس نے اعجاز کی طرف جھک کر آہستہ آہستہ کچھ کہا۔ پھر ان دونوں نے بڑی پھرتی سے اپنے رومال نکال کر نقاب کی طرح چہروں پر باندھ لیے۔ مسطح چٹان پر دم دم کی آوازیں ہوئیں اور وہ لوگ ان نقاب پوشوں کو دیکھ کر بونجھ کر رہ گئے جو اوپر سے کودے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ صورتحال کو سمجھ کر کوئی قدم اٹھاتے، پرمود نے اسٹین گن کی نالی وزارت داخلہ کے سیکریٹری کے سینے پر رکھ دی اور گرج کر بولا، اگر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو سیکریٹری صاحب اس دنیا سے کوچ کر جائیں۔ جو جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ سیکریٹری صاحب کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ سب لوگ اپنے ہتھیار پھینک دیں۔
एजाज ने टॉमी गन लहराई। टॉमी गन उन्हीं सिपाहियों में से एक की थी जिनकी वर्दियां इस वक्त उन दोनों के जिस्मों पर थीं। सिपाहियों ने एजाज का हुक्म सुनकर अपने लेफ्टिनेंट की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर तज़ब्ज़ुब के आसार थे। क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? एजाज गुर्राया। हथियार डाल दो, लेफ्टिनेंट ने बराई हुई आवाज में कहा। राइफलें और स्टेन गन्ने चट्टान पर ढेर हो गई। सेक्रेटरी के साथ आने वालों ने हाथ उठा दिए थे और बेहद खौफ नजर आ रहे थे। हम सेक्रेटरी साहब को साथ ले जा रहे हैं, प्रमोद ने लेफ्टिनेंट की तरफ देखते हुए कहा। अगर दूसरे हेलीकॉप्टरों ने हमारा ताकुब करने की कोशिश की तो सेक्रेटरी साहब को गोली मार दी जाएगी। अगर शराफत का मुजाहरा किया गया तो हम सेक्रेटरी साहब को सनग्राट पहुंचकर जिंदा सलामत छोड़ देंगे। वक्त बड़ा नाजुक था। अगर इस वक्त कुछ और सिपाही वहां पहुंच जाते तो शायद दुश्वारी पैदा हो जाती, इसलिए जरूरी था कि रवानगी जल्द अज जल्द अमल में आ जाए। प्रमोद सेक्रेटरी को धकेलता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। तुम लोग कौन हो? सेक्रेटरी की आवाज उसकी हलक में फंस रही थी। हम काले चोर हैं, बस अब तुम हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ, प्रमोद ने तोहकमाना लहजे में कहा। सेक्रेटरी ने बड़ी बेबसी से लेफ्टिनेंट की तरफ देखा, लेकिन वो बेचारा तो और ज्यादा बेबस था। अगर वो कोई कदम उठाता तो सेक्रेटरी की जान के लाले पड़ जाते और फिर अपने अफसरान के सामने इस बेचारे के लिए जवाबदही मुश्किल हो जाती। वो सब दम बखुद खड़े रहे और हेलीकॉप्टर परवाज कर गया। पायलट की सीट प्रमोद ने संभाली थी। उसके और एजाज के दरमियान में सेक्रेटरी फंसा हुआ था। हेलीकॉप्टर पूरी रफ्तार से सनग्राट की तरफ बढ़ने लगा। प्रमोद ने एजाज को इशारा किया और दूसरे ही लम्हे एजाज ने अपनी टॉमी गन की बट सेक्रेटरी के सर पर इस तरह मारी कि वो बेचारा दूसरी ज़रब की ख्वाहिश जाहिर किए बगैर बेहोश हो गया। लेकिन क्या हमारा फरार कामयाब रहेगा? एजाज बोला। क्यों नहीं? प्रमोद ने बड़े एतमाद से कहा। हमारे फरार की खबर ट्रांसमीटर के जरिए सनग्राट पहुंचाई जा रही होगी, देखा जाएगा, प्रमोद ने कहा। 4 बजने वाले थे। आसमान पर चांद तैरता चला जा रहा था। उसकी किरणें समंदर की सतह पर जाल बुन रही थी। हेलीकॉप्टर सनग्राट की ऊंची ऊंची इमारतों पर परवाज करने लगा। सारा शहर सन्नाटे में डूबा हुआ था। प्रमोद ने हेलीकॉप्टर को एक बंगले की छत पर उतार दिया। बंगले के मकीन जाग गए होंगे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर। एजाज ने खदशा जाहिर किया, लेकिन वो हमारा रास्ता नहीं रोकेंगे क्योंकि हमारे जिस्म पर मिलिट्री की वर्दी है, प्रमोद ने मुस्कुराकर कहा और अपने चेहरे पर बंधा हुआ रुमाल खोल दिया। एजाज ने रुमाल के सिलसिले में उसकी तकलीद की। फिर दोनों हेलीकॉप्टर से उतर आए। सेक्रेटरी, एजाज बोला, अब उसे साथ रखने की जरूरत नहीं है, प्रमोद ने कहा। वो दोनों जीने के करीब पहुंचे ही थे कि एक उधेड़ उम्र का आदमी तेजी से जीने तय करता हुआ ऊपर आ गया। हैंड्स अप, वो गरजा। उसके हाथ में दबे हुए रिवॉल्वर का रुख उन दोनों की तरफ था, लेकिन फिर खुद ब खुद ही उसका हाथ झुकता गया और आंखें मुतहय्यराना अंदाज में फैल गईं। गालिबन उसकी वजह मिलिट्री की वर्दी थी। हमारा ताल्लुक फोर्स से है, प्रमोद ने बारोब अंदाज में कहा। एक अहम काम से जा रहे थे कि हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी पैदा हो गई। अगर हम यहाँ उतरना पड़ते तो हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता। अच्छा, कोई बात नहीं, बूढ़े ने ये कहते हुए अपना रिवॉल्वर गाउन की जेब में रख लिया। क्या आपके पास कार है? प्रमोद ने पूछा। जवाब इस बात में मिला था। हुकूमत आपकी मशकूर होगी अगर आप वो कार हमें दे दें, प्रमोद ने कहा। हमें जल्द अज जल्द हेडक्वार्टर पहुंचना है। आपकी कार वापस कर दी जाएगी। जल्द ही हमारे कुछ इंजीनियर्स भी यहाँ पहुंचेंगे ताकि हेलीकॉप्टर की खराबी दूर करके उसे यहाँ से ले जाएं। मेरे साथ आइए। बूढ़ा जीने की तरफ मुड़ गया। प्रमोद ने मुस्कुराकर एजाज को आंख मारी और फिर बूढ़े के साथ उतरता हुआ बोला, क्या 2 अदद चादरें भी मिल सकेंगी? हाँ, बूढ़े ने कहा, लेकिन उसके लहजे में हैरत थी। हैरत एजाज को भी हुई थी, लेकिन इस वक्त कोई सवाल करना मसलहत के खिलाफ था। सिर्फ 5 मिनट बाद एक छोटी सी कार उस बंगले के अहाते से निकली और फराटे भरने लगी। प्रमोद ड्राइविंग कर रहा था। उसने एजाज से कहा, एक चादर तुम अपने शाने पर इस तरह डाल लो कि वर्दी दिखाई न दे। ओह, एजाज एक तवील सांस लेकर रह गया। दूसरी चादर प्रमोद ने अपने ऊपर डाल ली। सड़क दूर तक सुनसान पड़ी थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सुबह करीब थी। 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे। आरिफ भट्ट बड़ी बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। आज की रात टहलते हुए गुजर गई थी क्योंकि उसे इल्म था कि जजीरे पर फौज यलगार कर चुकी है। वो परेशान इसलिए था कि प्रमोद और एजाज का इस जजीरे से बचकर निकल आना मुमकिन नहीं मालूम हो रहा था। 5 बजे कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। आरिफ भट्ट चौंक पड़ा। उसे हैरत हुई कि इस वक्त कौन आ गया है। शायद उसका कोई मातहत कोई खास इत्तला देने आया हो। ये ख्याल जहन में आते ही वो बेतबाना खुद ही दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसने इस बात का इजहार नहीं किया कि घंटी की आवाज से मुलाजिम बेदार हो और जाकर दरवाजा खोले, और फिर दरवाजा खोलते ही उसके जहन को झटका सा लगा। उसके सामने मेजर प्रमोद और एजाज खड़े हुए थे। हेलो, प्रमोद मुस्कुराया। आरिफ भट्ट चंद लम्हों के लिए दंग होकर रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन कैसे आ जाता, जबकि इस बात का यकीन पहले ही से था कि वो दोनों उस जजीरे से नहीं निकल सकेंगे। वो इस बात पर भी हैरान था कि दोनों के जिस्मों पर फौजी वर्दियां थीं। क्या हमें अंदर आना चाहिए? प्रमोद मुस्कुराकर बोला,
ओह आइए मेजर। आरिफ बट चौंक कर एक तरफ हटता हुआ बोला, मैं हैरान हूँ कि आपको देख रहा हूँ। प्रमोद और एजाज अंदर आ गए। उन दोनों का शेव बड़ा हुआ था और आंखों की सुर्खी बता रही थी कि वो कई रातों से पूरी नींद नहीं ले सके थे। एजाज की हालत बहुत ही खस्ता मालूम हो रही थी, तक वो महज कुव्वत इरादी के बल पर संभला रहा था। आरिफ बट उन्हें उस कमरे में ले गया जहाँ की फजा हीटर से गर्म थी। कई दिन तक सर्दी का मुकाबला करने के बाद ये गर्म फजा उन दोनों के लिए बड़ी सुरूर अंगेज साबित हुई और उन्होंने कुर्सियों पर बैठकर अपने जिस्मों को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। मैं हालात जानने के लिए मुस्तरिब हूँ, आरिफ भट्ट ने प्रमोद की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन आपकी और एजाज की हालत साफ जाहिर कर रही है कि आपको आराम की जरूरत है, इसलिए मैं कुछ नहीं पूछूंगा। अगर कॉफी की एक प्याली और एक सिगरेट पीने को मिल जाए तो मैं बिल्कुल ताज़ा दम हो जाऊंगा, प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बरक्स एजाज फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे यूं महसूस हो रहा है कि कॉफी की 10 प्यालियां पीने के बाद भी मेरी थकन उस वक्त तक नहीं उतरेगी जब तक एक हफ्ता बिस्तर पर पड़े हुए ना गुजर जाए। तो फिर तुम आराम करो, दीवान पर लेट जाओ जाकर, आरिफ भट्ट ने कहा। लेकिन आराम करने से पहले इस वर्दी से पीछा छुड़ा लेना जरूरी है, प्रमोद बोला। मैं अभी शब ख्वाबी के लिबास का बंदोबस्त किए देता हूँ, आरिफ ने कहा और उस कमरे से चला गया। 20 मिनट बाद एजाज शब ख्वाबी का लिबास पहने और लिहाफ ओढ़े दीवान पर आंखें बंद किए लेटा था। प्रमोद ने शब ख्वाबी के लिबास पर गाउन भी पहन लिया था। वो और आरिफ भट्ट कुर्सियों पर आमने सामने बैठे थे। प्रमोद के होंठों में सिगरेट दबी हुई थी। दरमियानी तपाई पर गरम गरम कॉफी की प्यालियों से खुशबूदार भाप उठ रही थी। कॉफी के साथ उम्दा किस्म की सिगरेट ने प्रमोद की थकन को जैसे निचोड़ कर रख दिया। अब बड़े हुए शेव के बावजूद भी उसके चेहरे पर बशाशत नजर आने लगी थी। उसने आरिफ भट्ट की बेचैनी महसूस करते हुए अपनी दास्तान छेड़ दी। फियोना के ताकुब से जजीरे पर होने वाले हंगामे तक और इसके बाद से जजीरे से फरार तक वो सब कुछ बयान करता चला गया। आरिफ भट्ट हमतन गोश था। प्रमोद ने सारी दास्तान सुनाकर कहा, और फिर उन बड़े मियाँ की कार हमने यहाँ से तकरीबन 2.5-3 फरलांग के फासले पर छोड़ दी। वहाँ से यहाँ तक गलियों में छुपते छुपाते आए हैं। आप वाकई एक हैरत अंगेज इंसान हैं मेजर प्रमोद, आरिफ ने उसे तहसीन आमेज नजर से देखते हुए कहा। मेरा ख्याल तो ये है कि मैं किसी एतबार से भी हैरत अंगेज नहीं हूँ, प्रमोद ने हंसकर कहा। जजीरे के मार्के का सेहरा कतई आपके सर है। ये बताइए कि आप सरकारी ओहदेदारों को इस बात का यकीन दिलाने में कैसे कामयाब हुए कि इस जजीरे पर रेडिश जासूसों ने असलिहा साज फैक्ट्री कायम कर रखी है। मैंने उन्हें ये नहीं बताया था कि असलिहा साज फैक्ट्री कायम करने वाले रेडिश जासूस हैं। फिर मैंने सिर्फ इतना बताया था कि इस जजीरे पर किसी ने खुफिया तौर पर असलिहा साज फैक्ट्री कायम कर रखी है, आरिफ भट्ट ने कहा। मैंने यहाँ के पुलिस चीफ से मुलाकात की थी, जो मेरा दोस्त है। दोस्त है? प्रमोद ने हैरत से कहा। आरिफ भट्ट इस बात में सर हिलाता हुआ मुस्कुराया, फिर बोला, उससे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। खूब, प्रमोद ने कहा, लेकिन उसने ये जरूर पूछा होगा कि आपको इसका इल्म कैसे हुआ। कुदरती बात है, उसे पूछना ही चाहिए था। मैंने उसे बताया कि गुज़श्ता रात को मैं एक लॉन्च में समंदर की तफरीह करता हुआ उस जजीरे की तरफ जा निकला था। कुछ वक्त मैंने जजीरे पर घूमते हुए भी गुजारा और इसी दौरान में मुझे वहाँ चंद आदमी नजर आए। इत्तफाक से उन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने उनकी बातें सुन ली थी। उन्हीं बातों से मुझे पता चला कि इस जजीरे पर असलिया साज फैक्ट्री कायम है। बस हाँ, मैंने इतना ही बताया था और आपकी बात पर यकीन कर लिया गया। अव्वल तो ये कि पुलिस चीफ मुझे झूठा नहीं समझ सकता था। दूसरी बात यह कि चंद रोज कबल बहरी पुलिस ने एक ऐसी लॉन्च पकड़ी थी और असलहे की पेटियां थी। वो लॉन्च उस वक्त पकड़ी गई जब असलहे की पेटियां सनग्राट के एक वीरान साहिल पर उतारी जा रही थी। प्रमोद ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। दरअसल इसीलिए आपकी बात पर यकीन किया गया। बहरहाल, आरिफ भट्ट ने कहा, यह मामला मिलिट्री सीक्रेट सर्विस को रेफर कर दिया गया। उन लोगों ने जजीरे पर अपने 2 जासूस भेजे। उनके पास एक छोटा सा ट्रांसमीटर था। उन्हें हिदायत की गई थी कि अगर वो जजीरे पर नामालूम और पुरस्रार आदमी की नकलो हरकत देखें तो ट्रांसमीटर पर सिग्नल दे दें। चुनाचे उन दोनों ने ऐसा ही किया। उन दोनों को जजीरे वालों ने पकड़ लिया था, लेकिन वो गिरफ्तारी से चंद लम्हे पहले सिग्नल दे चुके थे। फिर वो दोनों जिन्हें स्कॉट फांसी देना चाहता था वही दोनों जासूस होंगे। अंदाजे से यही कहा जा सकता है, आरिफ भट्ट ने सर हिलाते हुए कहा। बहरहाल, मिलिट्री पहले ही से तैयार थी। जासूसों का सिग्नल मिलते ही जजीरे पर यलगार कर दी गई। आपको उन सब बातों का इल्म कैसे हुआ? पुलिस चीफ को भी इन बातों का इल्म हो गया था। फोन पर उससे मेरी गुफ्तगू हुई थी। प्रमोद ने आखिरी घूंट लेकर कॉफी का प्याला खाली कर दिया और उठकर बैरूनी रुख पर खुलने वाली खिड़की की तरफ बढ़ता हुआ बोला, अब मैं ये जानने के लिए बेचैन हूँ कि स्कॉट का क्या हशर हुआ। मुझे यकीन है कि जजीरे से उड़ने वाले हेलीकॉप्टर में वही होगा। शायद ही उसे बचकर निकलने दिया गया हो, आरिफ ने कहा। प्रमोद खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। हकीकत का इल्म आज के अखबारात से हो जाएगा, आरिफ फिर बोला। प्रमोद ने कुछ नहीं कहा
اور باہر دیکھتا رہا۔ صبح کا دھیما دھیما سا اجالا تاریک فضا کا جگر چاک رہا تھا اور پرندوں کے چہچہے سنائی دینے لگے تھے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہی اس کہانی کے چیپٹر کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کہانی سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی مزید کہانیاں سننے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔